पहला क्वेश्चन है अजय एंड विजय वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2024 they dissolve a partnership their works at that date show the followings आप on बैलेंस शीट गिवन है। उस तो बाद क्या पता स्टॉक रिलाइज 75% ऑफ इट्स बुक वैल्यू एंड बुक डेट से 5500 फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 10,000 गुडविल प्रोवाइड अनरिलाइजेबल इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अजय फॉर 24 ईयर प्रिपेयर रिलाइजेशन अकाउंट। ਆਪਾਂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਡੈਟਸ ਮਤਲਬ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਪੈਸੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਸ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਡੈਟਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਟਾਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਨਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬਿਲਟੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈਬਿਲਟੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਿਲਟੀਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੈਬਿਲਟੀਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਬਿਲਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਟਾਕ ਰਿਲਾਈਜ਼ 75% ਆਫ ਇਟਸ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਡੈਟ 5500। ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, 75% ਮਿਲੇ। 34 ਹੈ ਤਾਂ 75% ਜਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5500 ਡੈਟਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਜ਼ ਸੋਲਡ ਫॉर 10,000, 10,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ 10,000 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ ਅਜੇ ਫॉर 24 ਈਅਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਅਜੇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ 24,000 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੈਂਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਟੂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਤੇ ਸੈਂਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਦਾਂਗੇ, ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਐਂਡ ਰੋਬਰਟ ਆਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਅ ਫਰਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉसेस ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ 10-10-2 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/10/2024 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है। उस तो बाद क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1/4/2024। दे रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 रिलाइज इन कैश, डैटर 60,000 रिलाइज इन कैश, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है 5500 की, तो स्टॉक भी टेक ओवर किया, गुडविल भी टेक ओवर की, रियलाइजेशन एक्सपेंसिज 2,000। क्लोज द अकाउंट ऑफ द फर्म मतलब आप सारे अकाउंट्स जिन्ने भी है वो क्लोज करने हैं। तो ये अपने किन्ने अकाउंट बन जाएंगे, एक पार्टनर का रियलाइजेशन तो बनना ही बनना, पार्टनर के करंट तो कैपिटल अकाउंट बना लाँगे, तो उस तो बाद बैंक अकाउंट भी बनाने पैने। ठीक है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट पहला बना लेने, ये एसेट्स में ट्रांसफर कर लाँगे टू स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डैटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। बैंक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਸ਼ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਡਿਸੋਲਵ, ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। लैंड एंड बिल्डिंग तो रिलाइज हुए कैश 90,000 बाई मतलब कैश लिख देंगे। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग तो जो मिलेगा 90,000 तो डैटर तो 60,000 मिले, दोनों का टोटल 1.5 लाख भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाई कैश के नाम नाल 1.5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग तो 90, डैटर्स तो 60,000। उस तो बाद पार्टनर कैपिटल के इन्वेस्टमेंट राम ने लेती है तो बाय इन्वेस्टमेंट बाय राम मतलब राम्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके लिख देंगे 5500। तो स्टॉक बाय रहीम तो रहीम्स कैपिटल अकाउंट
7500। उस तो बाद गुडविल बाय रोबर्ट्स कैपिटल अकाउंट सॉरी करंट अकाउंट आने हैं, ठीक है, क्योंकि इतने करंट अकाउंट के बैलेंसिस गिवन सी, जिते जिते कैपिटल वर्ड बोले उसे करंट अकाउंट यूज़ करें। उस 18000। उस तो बाद इधर आप क्रेडिट साइड ते इन्होंने क्रेडिटर बारे कोई गल नहीं सी कीती, बट आप पैसे देवांगे तो टू कैश एंड क्रेडिटर्स सेम वैल्यू का ही लिख देंगे। उस तो बाद टू रिलाइजेशन एक्सपेंसिस लिखांगे, ठीक है, 2000 सी। टू कैश इतने भी लिख देंगे 2000, तो बाय लॉस जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय लॉस ऑन रिलाइजेशन आ जाएगा ओल्ड पार्टनर के आप बन देंगे। पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर कर लाँगे, ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करंट अकाउंट का सीगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लाँगे, ठीक है। उस तो बाद ये जिथे जिथे आप क्या सी बाय पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट बाय राम सी, तो वो वाली वैल्यूज़ लिखांगे, ठीक है। लॉस भी हुण कि रेशो मतलब किहड़े अकाउंट जाएगा, करंट अकाउंट के जाएगा। तो बाय पार्टनर करंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट बाय राम, स्टॉक बाय रहीम, गुडविल बाय रोबर्ट, इतने पार्टनर करंट अकाउंट वर्ड आप यूज़ किया सी। तो आप टू रिलाइजेशन 5500, 7500 तो 18000 लिखांगे, ठीक है। तो जिथे बाय कैश लिखा सी वो कैश अकाउंट के जाएगा, जब बाय बैंक लिखा सी बैंक अकाउंट जाएगा, ठीक है। लॉस ऑन रिलाइजेशन की आ जाएगा, ये अपना ये भी मतलब करंट अकाउंट के पावांगे, ये भी आप डेबिट साइड पर पा देंगे। उस तो बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी दोनों साइड टोटल करने तो बाद वो बाय कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। फिर आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करांगे, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लाँगे। फिर डेबिट साइड पर जो करंट अकाउंट का दे विचों बैलेंस आया सीगा वो ट्रांसफर कर लाँगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो टू बैंक अकाउंट के नाम नाल असीं लिखांगे। उस तो बाद बैंक अकाउंट प्रिपेयर करांगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखांगे, तो टू रिलाइजेशन जिथे आप बाय बैंक लिखा सीगा, ठीक है, 1.5 लाख वो वाला इधर डेबिट साइड पर ट्रांसफर कर लाँगे। उस तो बाद रिलाइजेशन एक्सपेंसिस आप कह रहे सी टू कैश टू बैंक वो वाला इतने क्रेडिट साइड पर लिख दो। टू कैश जिथे होर लिखा सीगा वो भी इधर क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा बाय रिलाइजेशन अकाउंट के नाम नाल। फिर जिथे पार्टनर कैपिटल दे विच असीं टू बैंक लिखा सीगा वो वालियां इधर टू बैंक तो इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। पार्टनर तीनों अलग अलग आ जाएंगे, बाय राम्स कैपिटल, बाय रहीम्स कैपिटल ते बाय रोबर्ट्स कैपिटल, क्योंकि उस अकाउंट के विचों असीं ये वैल्यू लेती है, ठीक है। दोनों साइड टोटल करेंगे वो मैच हो जाएगा। तीजा क्वेश्चन है ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी रेशो ऑफ 3:1 ऑन 31/12/2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। फिर फर्दर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਲਾਈजेशन ਅਕਾਊਂਟ प्रिपेयर कर ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਸਟਾਕ, ਡੈਟਰਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ, ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर दो। फिर सनरी क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बिल्स पेबल हो जाएंगे। फिर उस तो बाद नीचे जो क्वेश्चन दिता सीगा वो अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेने हैं। जे कोई चीज़ पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है तो बाय पार्टनर कैपिटल लिख दो, जे कोई चीज़ बेची है तो बस बाय कैश लिख दो, क्योंकि इस इतने तो हम आंसर आ ही जाना जे तुसी उल्ट फुलट भी लिखता, बट अगे पार्टनर कैपिटल के कैश के थोड़ा फर्क पै जाएगा, ठीक है। तो इस करके ध्यान नाल इत्थे ही पहला तो ही पार्टनर कैपिटल जिहड़ा बन रहा गा जां कैश बन रहा गा वो पहला ही सही लिखो। ये फिर आप की करांगे बाय कैश अकाउंट लिख देंगे, स्टॉक, डैटर्स ते प्लांट एंड मशीनरी। ये बेचिया सीगा ये तीनों चीज़ां तो बाय कैश लिखता। उस तो उन्होंने क्या सी जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेक ओवर की तो बाय एस कैपिटल जो ए ने टेक ओवर की सी। इधर डेबिट साइड ते आपां लायबिलिटीज़ पे हो कीतियां फुल दे विच, तां मतलब कि जिन्ना जिन्ना सीगा, ठीक है, 15400 तो बिल्स पेबल वो आप ट्रांसफर कर देंगे टू कैश के नाम नाल। उस एक्सपेंसिस सीगे वो भी आप टू कैश के नाम नाल डेबिट साइड पर लिख देंगे। बस ये ध्यान रखना जे अपने को कैश बैलेंस क्वेश्चन के स्टार्टिंग के कैश अकाउंट बनेगा, एंड ते अगर अपने को बैंक वाला बैलेंस है तो बैंक अकाउंट बनेगा। इतने लिखे कैश एट बैंक तक एक किहड़ा अकाउंट बनेगा, एंड ते फिर कैश एट बैंक अकाउंट। तो फिर आ जिहड़ियां ट्रांजैक्शन जितने कैश वर्ड बोल रही वो तो कैश एट बैंक ही लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश एट बैंक अकाउंट से इतना लिख सकते हो। फिर रिलाइजेशन अकाउंट के दोनों साइड का टोटल करने तो बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो अपनी क्रेडिट साइड पर आ रही है तो बाय लॉस ऑन रिलाइजेशन हो जाएगी। ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के विच। कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेने, बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लेंगे, जो रिजर्व सी ओल्ड पार्टनर्स के विच उन्हां दी रेशो के विच बन देंगे। फिर डेबिट साइड पर जिथे पार्टनर का नाम आप लिखा सीगा, मतलब उन्हें टेक ओवर किया सीगा, तो इस करके टू रिलाइजेशन 5000 आ जाएगा। फिर लॉस सीगा टू रिलाइजेशन, इधर डेबिट साइड से ट्रांसफर कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो टू बैंक आ जाएगा।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 68,500 ਇੱਧਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਿਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਰ ਪੇਡ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। क्वेश्चन से लिखा सी liabilities were paid in full in addition one bill for 700 discounted was dishonor and had to be paid by the firm, मतलब कि डिसऑनर हो गया सी बिल तो हुण आपां नूं फर्म नूं पे करना पैना, तो अपना एक्सपेंस ही हो गया। इत्थे टू रिलेशन एक्सपेंस नहीं आपां लिखांगे, इत्थे की लिखांगे टू कैश ही लिख देंगे, मतलब बिल डिस्काउंटेड पे कीता है जो, ठीक है। तो इस करके टू बिल डिस्काउंटेड पेड बट आना कैश के नाम नाल ही, वही चीज़ इत्थे अपने कैश मतलब कि लिखांगे कैश अकाउंट बाय रीलेगेशन अकाउंट के नाम नाल लिखांगे, ठीक है। 700 रुपये मतलब टोटल 19,700 सीगा, वो 19,700 ही लिख देंगे। उस तो बाद अब कैपिटल अकाउंट के विच जो बैलेंसिंग फिगर आई सी टू बैंक के नाम नाल वो भी आप बाय कैपिटल अकाउंट्स इत्थे लिख देंगे, दोनों साइड टोटल करांगे तो मैच हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है माला नीला एंड काला वर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2024 वाज एज अंडर liabilities assets are the on this date the firm was dissolved, the asset realized as under। आप अगे फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई गिव लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेने, ये एसेट्स नूं डेबिट साइड ते ट्रांसफर कर देंगे, किहड़ी प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स प्रीपेड इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, तो जी डेटर की प्रोविजन से क्रेडिट साइड ते ट्रांसफर कर देंगे। फिर सनडरी क्रेडिटर शीला पार्टनर है नहीं गी तो शीला भी आउटसाइडर होगी, तो शीला लोन भी आप ट्रांसफर करांगे क्रेडिट साइड ते। रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व ये आप क्रेडिट साइड ते ट्रांसफर कर लेंगे। उस तो बाद हम नीचे जो क्वेश्चन दिता सीगा वो पढ़ के उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। एसेट एज रिलाइज एज अंडर प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स की वैल्यू दी है उन्नी आप बाई कैश के नाम नाल लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की माला एट अ वैल्यू ऑफ 2000 तो बाई मालास कैपिटल अकाउंट लिख देंगे 2000, ठीक है। शी ऑल्सो एग्री टू पे शीलाज लोन, कहती मैं खुद की करूँगी शीला का लोन माला कहता मैं पे कर दूँ, ठीक है। तो फिर आप की करांगे टू मालास कैपिटल अकाउंट लिख देंगे इधर 13,000 डेबिट साइड ते। उस तो बाद ये क्या सीगा सनडरी क्रेडिटर बारे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं किया तो आप उन्नी वैल्यू ही पे कर देनी होंगी हैगी, ठीक है। 15,000 से 15,000 पे कर देंगे। तो रीलाइजेशन एक्सपेंसिस होए सी अपने ये एक तो 5,000 वाला बिल वाला सीगा वो, तो एक रीलाइजेशन एक्सपेंसिस 2,000 से वो आप एक्सपेंसिस लिख देंगे, बिल डिस्काउंट लिख देंगे टू, ये सारे कैश के नाम नाल आपां लिखांगे। दोनों साइड टोटल करांगे तो अपनी जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो लॉस आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेने हैं कि इधर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड ते लिख देंगे। रीलाइजेशन के जिथे आप लिखा सीगा टू मालास कैपिटल 13,000 वो इधर बाय रीलाइजेशन के नाम नाल माला के लिख देंगे। उस तो बाद जिथे बाय मालास लिखा सी वो डेबिट साइड ते जाएगा टू रीलाइजेशन के नाम नाल 2,000, जो रीलाइजेशन का लॉस होया सी वो तिन्हां दे विच टू रीलाइजेशन के नाम नाल पै जाएगा। उस तो बाद दोनों साइड टोटल करांगे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू कैश या बाई कैश आ जाएगा। उस तो बाद अगे कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेने, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड ते लिखांगे। टू रीलाइजेशन अकाउंट के नाम नाल जो एक्सपेंसिस वगैरह नहीं जो पैसे आए थे वो इधर आएंगे। टू रीलाइजेशन अकाउंट के नाम नाल एसेट्स सेल की 36,000 दी डेबिट साइड ते लिख देंगे। उस तो बाद कालास कैपिटल का अपने बाई बैंक लिखा सीगा तो वो इधर टू कालास कैपिटल आ जाएगा। फिर क्रेडिट साइड ते बाई रीलाइजेशन अकाउंट जो एक्सपेंसिस वगैरह पे किए सी सारे। फिर उस तो बाद मालास कैपिटल नीलास कैपिटल टोटल कर लाँगे, दोनों साइड्स का टोटल मैच हो जाएगा। क्वेश्चन है PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, उस तो बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन। फिर उन्होंने कहा यू आर रिक्योर्ड टू प्रिपेयर रीलाइजेशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट। तो आप रीलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेने, एसेट्स में डेबिट साइड से ट्रांसफर कर लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी फिक्सचर स्टॉक डेटर्स। फिर लायबिलिटी में क्रेडिट साइड से ट्रांसफर कर लेंगे, कल क्रेडिटर से उन्होंने ट्रांसफर कर लिया। फिर नीचे क्वेश्चन फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई सी वो आप यूज़ करके क्वेश्चन आंसर कर लें। बाई बैंक लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी इतने दिता सी इन्नी रिलाइज हुई है बैंक प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्सचर तो स्टॉक तो डेटर, सो जिनी जिनी वैल्यू लिखी सी वो आप इतने देख के लिख दी। उस तो बाद टू बैंक आप क्रेडिटर्स में 5% डिस्काउंट उन्होंने आपको देता है तो 5% ये माइनस करेंगे 48,000 चो जिन्ना आ जाएगा वो लिखांगे टू बैंक के नाम नाल। रीलाइजेशन एक्सपेंसिस 1500 सी टू रीलाइजेशन एक्सपेंसिस मतलब कैश के नाम नाल लिख देंगे 1500। उस तो बाद ये
ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4200 ਰੁਪਏ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਰੀਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੂ ਬੈਂਕ ਬੋਲਿਆ ਵਾਈ ਬੈਂਕ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਵਾਈ ਵੇ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 4200 ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏ।